Okay, so last time we were discussing about harmonic waves, and I hope some of you must remember that when I was dealing with harmonic waves, I told you that these waves are of the form in which we have the profile function given like what? How does the profile function look like when you have a harmonic wave? Sinusoidal. Exactly. So it's look like that of a sinusoidal profile, and we can write such a wave as uh, let's say phi x of t, but I'm keeping t constant. So at t is equals to 0, I can keep it as uh, a sine kx. Okay. Is the writing visible? Is it more bright? Should I change this? I would do it. Don't worry. So I would go in color corrections. The brightness can be reduced a bit. It should be fine. Now it is fine, right? So the wave of the form a sine kx can be called as a harmonic wave. And as I told you, in harmonic wave, what we have is continuous repetition of wave profiles. Continuous repetition of wave profile. Last time we were discussing about a few things like this A is to be called as the amplitude, and there is a special name for this K, and what that is? Propagation number. Okay, we call this as propagation number. And what were the units of this K? Anyone remembers? What were the units of propagation number? Beta inverse, It centimeter was inverse. in Yes, length. It was in length inverse. Fine. It was in length inverse. Now, what I'm saying is, if you have to convert this profile into a wave function, I expect you to do something. What do we do when we want to convert a profile into a wave function? We replace x with X x minus VT. minus vt, and that is what our wave function would look like. Psi of x of t, instead of now saying that it is at some constant t equals to 0, it is some a sine k, or x ki jagah I can write as x minus vt, where you know what v is, where you know what t is. Okay, so such a wave in which you also know about the velocity, you also have the velocity in the profile, we call such a wave as progressive wave. Because with time, such a wave will progress. With time, such a wave will progress. Fine. So I can in a way call that this function, which is a function of time and position, can be written as a sine k x minus vt. I can also write it as equals to some function of x minus vt. Okay, I can write it in this form. Now, you remember that we can do a few mathematical treatment on this particular function, and we will get to know about a few things. दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे. पहली है, आप देखें ये. So, for example, let us suppose it is given that you have a wave like this. Hmm? A wave which is like this. You know that such a wave is of the form of sinusoidal wave or sin x of a circle. Okay. So now you know that अगर मैं इसे साइन लूं और अगर साइन के आर्ग्यूमेंट को पाई मानूं तो ये हो जाएगा 0. दिस विल बी पाई, दिस विल बी 2 पाई, दिस विल बी 3 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई. ओके, और ये होगा क्या? व्हाट विल बी दिस इक्वल्स टू पाई बाय 2, and what will be this equals to 3 pi by 2. I hope you all remember such things. Okay, तो ये आपका जो फंक्शन yes, प्लॉट किया है वो साइन ऑफ x है, जहां पे x जो है इट इज चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ पाई एंड पाई बाय 2. तो मैं इसे पूरा kx भी बोल सकता हूँ. आई कैन से दैट on y axis I have kx, on
x axis I have sin kx, तो ये जो है it is, let's say I'm calling as some kx and that's how I'm saying कि ये ऐसे प्रोग्रेस करेगा। हम इसे x के टर्म में भी बोल सकते हैं that it is x, फिर हमें कुछ और पोर्शन लेना होगा in terms of x, तो इसे आप kx बोलेंगे या आप इसे x भी बोल सकते हैं। We would see कि कब इसे x बोला जाएगा, that on x axis there is x, तो कब kx बोला जाएगा। फाइन। तो सबसे पहले आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरीके का जो फंक्शन है ये साइन फंक्शन है, और हम ये जानते हैं कि साइन फंक्शन 2 पाई के बाद खुद को रिपीट करता है। अगर मैं इतना छुपा लूं तो 0 से लेकर 2 पाई के बाद देखूं तो आई विल फील एज इफ द फंक्शन लेटर इज द रेप्लिका ऑफ द फंक्शन अबव या बिफोर 2 पाई। इतना देखें, अगर मैं इस फंक्शन को इतना छुपा लेता हूं यहां से यहां तक, ओके, तो ये रहा आपका 0 से 2 पाई में साइन ऐसा दिखता है। अगर उसके बाद आप देखेंगे तो इट विल अगेन बिकम सेम फंक्शन एज इफ देयर इज अ रेप्लिका। ठीक, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर अगर मेरा जो फंक्शन है sin x, t, ये पूरी एक वेवलेंथ कहलाती है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ये एक वेवलेंथ लैम्डा कहलाती है। अगर मैं x के टर्म में इसे डिनोट करता, अभी मैंने kx के टर्म में डिनोट किया था, इट वाज इन टर्म्स ऑफ पाई, ओके। अगर x के टर्म्स में डिनोट करता तो ये पूरी एक वेवलेंथ कहलाती है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं पाई से डिनोट करूंगा तो यू कीप दैट एज kx, और अगर मैं x से डिनोट करूं तो यू कीप दैट एज लैम्डा। तो ये एक लैम्डा वेवलेंथ है, और हर एक वेवलेंथ के बाद आप देखें ये वेव खुद को कर रही है रिपीट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोनिक वेव। क्या कि अगर आप x में प्लस माइनस लैम्डा कर भी दें तो भी आपकी वेव प्रोफाइल नहीं चेंज होगी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अगर आप x में प्लस माइनस लैम्डा कर दें, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड एज स्पेशियल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, तो आपकी प्रोफाइल नहीं बदलेगी। ठीक, ये चीज समझ आई? ये मैंने क्यों लिखा और कैसे लिखा? I have written psi of x comma t is equal to psi of x plus minus lambda comma t. Yes, sir. Okay. So after every lambda, after every wavelength, our wave is repeating itself. इसलिए लिख दिया। लेकिन जो फंक्शन हमने ऊपर पहले डिफाइन किया था, it was of this form. तो हम जानते हैं psi of x t was of this form. a sin k x minus vt, ये इस तरीके से था। अब आपको क्या करना है, इसको ही बराबर लिख देना है a sin k, x को किससे रिप्लेस करना है बताएं, x को किससे रिप्लेस करना है? x प्लस माइनस तो लैम्डा। ये x प्लस माइनस लैम्डा कर दिया और माइनस वीटी और आ गया हमारे पास। ठीक, दैट्स इट। अब ये चीज मैं बोल रहा हूं, दिस पर्टिकुलर थिंग इज सेम एज, तो ये चीज याद रखें कि अगर मैं x से रिलेट कर रहा हूं तो मेरे पास जो पीरियड होगा वो लैम्डाज में आएगा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4। अगर मैं पूरा kx ले रहा हूं तो जो पीरियड होगा वो पाइज में आएगा, पाई बाई 2, 0, पाई, 2 पाई। तो अभी बात की मैंने केवल x की, तो मैंने प्लस माइनस लैम्डा लिख लिया। अगर मैं पूरे kx की बात करता, यानी फुल आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन, तो अगर मैं ये लेता, सो इट इज एज इफ कि मैं पूरे के पूरे साइन के आर्ग्यूमेंट में, यानी kx प्लस माइनस वीटी में, मैं आपको बताऊं, ऐसा करने का मतलब ये है कि मैंने ये कर दिया है साइन के एक्स माइनस वीटी, इतने में ही प्लस माइनस 2 पाई कर दिया। यानी ये टोटल है, पूरे फेज में प्लस माइनस 2 पाई जोड़ा है, और जब लैम्डा जोड़ा तो केवल किस में जोड़ा? एक्स में। ये पूरे के एक्स माइनस वीटी में प्लस माइनस 2 पाई जोड़ा है, ये दोनों बातें बराबर है। या तो आप कहें कि के एक्स को मैंने 2 पाई टाइम्स के बाद रिपीट किया, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हर 2 पाई इंटरवल के बाद द वेव रिपीट्स इटसेल्फ। देखें 0 से 2 पाई में, फिर 2 पाई से 4 पाई में, फिर 4 पाई से 6 पाई में, 6 पाई से 8 पाई में, लाइक दिस। या आप लैम्डा से बोलते हैं 0 से लैम्डा में, फिर लैम्डा से 2 लैम्डा में, 2 लैम्डा से 3 लैम्डा में, लाइक दिस। तो ये दोनों ही चीजें, ये दोनों ही बातें बराबर है। ठीक, तो ये मैथमेटिक्स जो आर्ग्यूमेंट मैं दे रहा हूं आपको फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये समझ आया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
सेइंग नो सर। अगर x में प्लस No, no. माइनस लैम्डा करो या सेइंग कि kx में प्लस माइनस 2 पाई करो इज वन एंड द सेम थिंग यूजिंग आइडेंटिटीज. तो इफ आई विल यूज सच थिंग नाउ, इन दोनों को इक्वेट करके देखें तो व्हाट आई विल गेट एज द फंक्शन विल बी दिस. एक साइड तो मेरे पास होगा a sin kx प्लस माइनस लैम्डा माइनस vt और दूसरी साइड होगा a sin ब्रैकेट kx माइनस vt प्लस माइनस 2 पाई. ओके, अब आप इसके ब्रैकेट्स को ओपन करें, a से ये कैंसिल हो जाएगा फिलहाल. आप ब्रैकेट्स को ओपन करें, इट वुड बी साइन ऑफ k को मल्टीप्लाई करना होगा x प्लस माइनस लैम्डा माइनस vt से, और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन kx माइनस kvt प्लस माइनस 2 लैम्डा. अब इसे थोड़ा सा और ओपन करें, व्हाट यू विल गेट, इसे ओपन करें इस ब्रैकेट को, साइन ऑफ kx प्लस माइनस k लैम्डा माइनस kvt इज इक्वल्स टू साइन ऑफ kx माइनस kvt प्लस माइनस 2 पाई. अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, साइन तो तभी बराबर होगा ना जब आर्ग्यूमेंट्स इक्वल होंगे इंटरनली. तो इन दोनों में देखें kx इज देयर माइनस kvt इज देयर माइनस kvt इज देयर. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई के. तो लैम्डा के नहीं, लैम्डा कहाँ से आ गया, मैं कह रहा हूँ पूरा k लैम्डा 2 पाई के बराबर होगा. मैंने लैम्डा के बारे में कुछ कहा ही नहीं. k equals to 2 pi by lambda. तो अभी फिलहाल पता चला कि भाई k लैम्डा की वैल्यू करीब करीब 2 पाई के बराबर होगी. अब हम जानते हैं क्योंकि ना तो वेवलेंथ नेगेटिव हो सकती ना ही k नेगेटिव हो सकता है. ठीक, क्योंकि k अपने आप में एक नंबर बताता है कि कितनी वेव्स गई, एंड देयर इज नथिंग लाइक -5 वेव्स निकल जाएंगी इतनी देर में. तो कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं, वेवलेंथ और वेव नंबर दोनों पॉजिटिव ही होंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, आई कैन सिंपली राइट दैट k लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई, यानी कि k की वैल्यू किसके बराबर हो गई. सचिन राठौर, यू हैव अ क्वेश्चन. 2 pi upon lambda. Yes sir. सचिन पूछिए, व्हाट इज द क्वेश्चन. And my question is that when you multiply the k with बेटा dt. आप बहुत शोर हो रहा है आपकी तरफ से. आई थिंक इट इज प्रवीण पाल, विल यू प्लीज. यस प्रवीण, अब ठीक है. अब सचिन आप बताइए. प्रवीण आप माइक ऑन मत कीजिए प्लीज. सचिन आप बताइए. सर हाँ, सर हमने vt को lambda से रिप्लेस करा. नहीं vt को नहीं किया बेटा. I never said you replace vt with lambda. I just said. नहीं सर, हाँ बताइए क्या बोल रहे हो. I'm just check the equation. This equation you understood or you not. मैं बोल रहा हूँ, हमने 2 pi को k से मल्टीप्लाई. बात सुने पहले. You first listen to what I am saying. जब 2 पाई जोड़ा था तो पूरे के पूरे साइन के आर्ग्यूमेंट में जोड़ा था, k में नहीं. ठीक है, और जब लैम्डा जोड़ा था तो केवल x में जोड़ा था. ठीक, क्योंकि यहां पे मैंने बताया है कि एक फंक्शन है आपके पास साइन kx और एक फंक्शन है आपके पास साइन kx. एक में मैंने क्या किया है, x में प्लस माइनस लैम्डा जोड़ा है और दूसरे में पूरे में प्लस माइनस 2 पाई जोड़ा है. तो इसमें 2 पाई के साथ k मल्टीप्लाई नहीं हुआ है. आई एम सेइंग adding plus minus 2 pi to the whole argument is same as adding plus minus lambda to x. एक वेवलेंथ x में बदलने का मतलब है पूरे के पूरे पीरियड में प्लस माइनस 2 पाई बदलना. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आई वांट टू कन्वे. सचिन, could you get it? And this is the reason यहाँ पे k का जब मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस लैम्डा लिया था तो पूरे में मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस माइनस 2 पाई लिया तो केवल और केवल ऐड हो गया है. इट्स लाइक दिस ओनली. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस और नो? Yes sir. Then it's Yes fine. sir. So from this argument, हमने ये कहा ना कि we have see it's like this. ये रही हमारी साइन वेव. ओके, अब हमारे पास दो चीजें हैं. अगर मैं x एक्सिस पे ले लूं kx, जो कि पूरे के पूरे साइन का आर्ग्यूमेंट है, पूरा x ले लिया यानी kx ले लिया, तो हम जानते हैं साइन तो ऐसे जाता है 0 पाई, फिर ये 2 पाई, फिर ये 3 पाई, फिर ये 4 पाई, और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2.
ये कितना हो जाएगा 3 pi by 2 और ये कितना हो जाएगा 5 pi by 2. It would go like this and this will happen only and only I have kx on x axis. पूरा kx लिया है साइन का इनपुट, तो आप जानते हैं साइन थीटा में तो थीटा की वैल्यूज हैं 0 90 180 वैसे ले रहे हैं. अब आ जाए आप, अगर मैं kx की जगह x लेकर लूं तो क्या होगा. सो दिस इज व्हेन यू वुड टेक x ऑन x एक्सिस. तो जो आपकी एब्सिस का ये x एक्सिस में अगर मैं x लूंगा तो देन आई विल कॉल इट एज दिस. यहां से यहां तक कहलाएगी लैम्डा, ये कहलाएगा लैम्डा बाय 2, ये कहलाएगा 3 लैम्डा बाय 2, ये कहलाएगा 2 लैम्डा. तो फिर ये क्या हो जाएगा लैम्डा बाय 4 और फिर ये कितना हो जाएगा यू नो अकॉर्डिंगली व्हाट इट विल बी. ठीक है, तो ये लैम्डा बाई 4, फिर इसमें लैम्डा बाई 4 ऐड कर दिया तो लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा बाई 2 में लैम्डा बाई 4 ऐड कर दिया. सो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ लैम्डा. इस तरीके से यू विल प्रोसीड. अगर x है तो लैम्डा में चेंज हो रहा है और अगर पूरा kx है तो किस में चेंज हो रहा है देखें पाई में. यही कारण था कि जब kx में बदला मैंने तो मैंने कहा कि प्लस माइनस 2 पाई, और जब x में बदला तो आई एम सेइंग दैट इट इज सेम एज इफ आई एम शिफ्टिंग बाय वन वेवलेंथ प्लस माइनस लैम्डा. ओके, तो एक नंबर मिल गया आपको, एक रिलेशनशिप मिल गई कि ये जो k है जिसे आप प्रोपेगेशन नंबर बोल रहे हो या वेव नंबर बोल रहे हो, इट इज रिलेटेड विद व्हाट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. ये वेवलेंथ से रिलेटेड है. अंडरस्टूड. ये आपने पढ़ा हुआ भी था, बस इसको इसका डेरिवेशन नहीं आता था आपको, लेकिन अब आपको ये भी प्रूव करना आ गया, डिराइव करना आ गया कि फॉर अ गिवन हार्मोनिक वेव द रिलेशनशिप बिटवीन k एंड लैम्डा इज k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा. फाइन. अब आप यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने ली थी kx वाली, ये वाली देखें. यहाँ पे यू कैन पुट इन, इसको मैं पाई के टर्म्स में क्या बोलता हूँ, व्हाट दिस पॉइंट इज, दिस इज 0. ये कौन सा पॉइंट है, ये 2 पाई, ये 3 पाई, this is 4 pi. Okay. Praveen, please, because you are not sitting at a quiet place, I request you don't turn on your mic. It becomes very odd. Okay. Otherwise, I will not share the recording with you. It becomes unprofessional. तो प्रवीण आप या तो शांत जगह पहुंच जाओ या फिर माइक्रोफोन यूज करो. डन. तो अब अगर ये पाई में लिखा है तो इस एक्सिस पे क्या है एक्चुअली kx है. अगर मैं अभी प्रोग्रेसिव वेव नहीं बता रहा हूं, केवल प्रोफाइल की बात कर रहा हूं, तो हम देख रहे हैं कि केवल स्पेस में भी x में भी ये वेव अपने आप को रिपीट कर रही है. हर कुछ देर x के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रही है. अच्छा, अब आप k की जगह वैल्यूज पुट करते जाएं. व्हाट इज k इज इक्वल्स टू एज यू से 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x. 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x. तो अब मैं ग्रीन से लिखकर बताता हूं आपको. अगर आपके पास मान लीजिए ये x एक्सिस होती है, मैं ऊपर लिखता हूं, इफ दिस वाज एन x एक्सिस, तो ये पॉइंट क्या कहलाता इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. इस पॉइंट को क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता, 2 पाई क्या कहलाता, लैम्डा इटसेल्फ. 4 पाई वुड हैव बीन 2 लैम्डा. तो अब ये ऐसे चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2 लाइक दिस. तो अब ये लैम्डा बाय 2 होगा, ये चेक करते हैं. तो व्हाट वी हैव टू डू, आप देखें kx में हम बोल रहे हैं इट इज इक्वल्स टू kx इज इक्वल्स टू पाई, बट वी नो दैट kx इज इक्वल्स टू में k बराबर है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इज इक्वल्स टू पाई. पाई से पाई कैंसिल, x बराबर क्या हो गया लैम्डा बाय 2 लाइक दिस. तो kx और x में ये रिलेशनशिप है. गॉट इट. अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे ये चेक कीजिए व्हाट दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बाय 4. तो अब ये चेक करते हैं, और ये इन टर्म्स ऑफ पाई इज पाई बाय 2. तो आई एम सेइंग दैट माय kx इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, बट k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा व्हिच इज अ कांस्टेंट बिकॉज़ पाई इज कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट, और x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 बोल रहा हूं. पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x कितना हो गया, नहीं 2 से 2 कैंसिल क्यों होगा, 2 और 2 तो 4 हो जाएगा, तो x विल बी लैम्डा बाय 4. इट विल नॉट गेट कैंसिल, lambda by 4, not pi by 4. So in terms of x, it is lambda by 4. In terms of kx, it is pi by 2. Fine. So that's how you will relate the argument. तो साइन के अंदर जो चीज लिखी जाती है ये कहलाता है आर्ग्यूमेंट.
ठीक है, तो साइन के आर्गुमेंट से आप वेवलेंथ पता कर सकते हैं। एंड वेवलेंथ का दूसरा नाम शायद आपने पहले ना पढ़ा हो, अब आप पढ़ लीजिए। वी कॉल इट एज स्पेशियल फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट डू आई मीन बाय स्पेशियल फ्रीक्वेंसी? अगर पोजीशन के साथ कोई चीज अपने आप को रिपीट कर रही है तो उसे हम बोलेंगे पोजीशन हार्मोनिक वेव। और अगर स्पेस में, तो ये स्पेशियल निकला है इस शब्द से, स्पेस। और आप जानते हैं स्पेस इज रिलेटेड विद एक्स एक्सिस या पोजीशन एक्सिस। तो पोजीशन के साथ अगर कोई अपने आप को चीज रिपीट कर रही है, यानी इट इज हैविंग सम वेवलेंथ। अगर मैं 1 मीटर चला तो मुझे 5 वेव मिली, तो 5 वेव पर मीटर इज द वेवलेंथ। ओके, या हम कह सकते हैं 1/5 इज द वेवलेंथ। फाइन, तो दैट्स हाउ यू ट्रीट एंड कॉल स्पेशियल फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ का दूसरा नाम क्या हुआ? व्हाट इज द अदर नेम फॉर वेवलेंथ? Spatial frequency. Spatial frequency, definitely. Okay, so now what we will do is I will give you a simple example. Let's say यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस है 5 मीटर का, ठीक? एंड देयर इज अ बॉय, लेट मी कॉल दैट बॉय एज राज सिंह। ठीक है, मुझे पहला नाम राज सिंह ही दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। राज सिंह यहाँ 0 से चलना शुरू करते हैं और 5 मीटर तक जाते हैं। एंड ही ऑब्जर्व समथिंग, एक रोड पर चल रहे हैं एंड ही ऑब्जर्व समथिंग। व्हाट दैट इज? इट इज दिस। फाइन, यहां से यहां तक 5 मीटर का डिस्टेंस है। तो 5 मीटर में राज सिंह ने ऑब्जर्व किया कि कोई चीज अपने आप को पोजीशन में रिपीट कर रही है। जैसे मान लीजिए सेम घर दिख रहे हैं, तो ये एक घर है जिसपे ये डिजाइन बना है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। एंड एज ही प्रोग्रेसेस in x direction he sees something repeating itself in space. तो इसने काउंट किया, ये कितनी वेव हो गई? 1 2 3 4 5। तो 5 वेव्स इन कितना डिस्टेंस? व्हाट इज द डिस्टेंस? 5 मीटर। तो what he will do is to find the wavelength he would say 5 मीटर में number of wave is 5, तो he will get lambda is equals to 1। तो 1 मीटर की एक वेवलेंथ है और 5 मीटर की 5 वेवलेंथ हो जाएंगी। ठीक, 1 मीटर की एक वेवलेंथ है, 5 मीटर की 5 वेवलेंथ हो जाएंगी। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लेकर देखिए। अब लेट मी टेक अनदर स्टूडेंट। ये रहा 5 मीटर का डिस्टेंस, ठीक। अब मैं लेता हूं लेट्स से नीतीश राजपूत इज देयर। तो इन्होंने देखा कि ये चलना शुरू करते हैं इन एक्स डायरेक्शन, 5 मीटर गुजर गए, तो 5 मीटर गुजरे तो यहां तक ये पहुंचे। अब बताइए इसकी वेवलेंथ क्या होगी? व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव? सर 1/5 बताइए व्हाट विल बी द वेवलेंथ? 5 ओके, कीप योर माइक्स म्यूटेड। अब सुनिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक आप ये इंश्योर ना कर लें कि कोई चीज रिपीट भी करती है, तब तक उसे पीरियोडिक नहीं मानोगे। एक वेवलेंथ तो ठीक है, वेरी गुड, लेकिन ये अपने आप को रिपीट कर रही है। तो ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इसे वेव माने तो, लेकिन क्या आप इसे वेव मानते हैं? ये तो रिपीट ही नहीं कर रही थी, आगे का तो कुछ बताया ही नहीं था। लेकिन हाँ, सरसरे तौर पे अगर आपसे पूछ लिया जाता आपकी नॉलेज के हिसाब से कि भाई कितनी दूर चले कि एक वेवलेंथ खत्म होगी, तो आप कहते कि 5 मीटर चले, तो लैम्डा कितना हो जाता फिर? 5 मीटर। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये अजम्पशन है आपके दिमाग में कि दिस विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर आई विल मूव फॉरवर्ड। गॉट इट? तो एक ही वेव पैकेट है, मान लो केवल इतना ही है, तो देन आल्सो यू कैन कॉल इट एज अ वेव, नो प्रॉब्लम। बट इसकी वेवलेंथ डिटरमाइन करने के लिए देन यू हैव टू बी कॉशियस। तो क्योंकि हमने जो डेफिनेशन लगाई थी वो तो ये थी ना कि कितने इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रही है, और रिपीट ही ना करे तो देन यू हैव टू थिंक विद स्मार्टनेस। आपको बता दिया गया है, ओके।
तो योर आंसर इज राइट, इट इज 5 मीटर, बट जो आपको डेफिनेशन दी गई उसमें तो कहा था रिपीट करेगी, और आपने तो बताया ही नहीं कि सर ये आगे रिपीट कर रही है या नहीं, पूछा ही नहीं। तो कीप योर माइंड ओपन इन सच केसेस, ओके, वेदर इट इज अ वेव एक्चुअली और नॉट। ये तो टर्मिनेट हो गई तो टर्मिनेट हो गई, तो वेव नहीं, फिर कुछ और कहलाएगी। यू कैन मेक सच अ वेव विद लॉट ऑफ वेव्स, एक फ्रीक्वेंसी से नहीं, ओके। So a thing which is repeating in x-axis after certain interval of time, you call that as spatial wave या spatial frequency या spatial period। सारी चीजें रिलेटेड है। अब आते हैं, ऐसा ही कोई चीज अगर टाइम में हो तो उसे आप लोगों ने 9th में पढ़ा, यू कॉल सच थिंग एज टाइम पीरियड। एक हो गया स्पेशल पीरियड की स्पेस में कोई चीज रिपीट कर रही है, दूसरा है टाइम पीरियड। तो अब हम टाइम पीरियड पढ़ के देखेंगे, तर्क वही है। We will use the same concept right here. We will use the same concept, and the concept is Sachin. Yes, पूछिए। Sir, Yes. how to find whether the wave is repeating or not? That is a very valid question. ऐसे तो पता नहीं कर सकते कि अगर आपके पास केवल 5 मीटर ही दिए हैं तो कैसे पता करेंगे whether wave is repeating or not। तो आप इन्फिनिट वैल्यूज तक जाकर चेक नहीं कर सकते। वैसे तो आई एम सेइंग कि दिस वेव इज एक्सटेंडिंग टिल इंफिनिटी, तो हम तो जाकर देख नहीं सकते। तो फिर जितनी कोशिशें करके, जितने एक्स के लिए आपको दिया गया है, केवल उतना ही चेक करें। एंड क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव है तो आप ये मान के चलिए कि ओके, आई कैन कंसिडर दैट इट इज कंटिन्यूअस, ओके। जब आप लोग आगे चल के सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इफ अ वेव इज हैविंग जस्ट वन पीरियड, तो इसको सिंथेसाइज करने में कई सारी फ्रीक्वेंसीज भी लग सकती हैं, ओके। अगर ये 4 पीरियड पे डिफाइंड है तो अलग बात है, अगर ये बहुत सारे पीरियड पे डिफाइंड है तो अलग बात है। सो यू हैव टू थिंक कॉशियसली। अभी के लिए आपको डराने की कोई बात नहीं है, जस्ट रिमेंबर द आंसर वाज करेक्ट एंड दिस आंसर वाज आल्सो करेक्ट, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं आगे, अबाउट टाइम रिपीटिशन या टेम्पोरल रिपीटिशन, जब टाइम के साथ कोई चीज खुद को रिपीट करे। So now what I am saying is, instead of using same argument, instead of changing, जैसे हमने पहले चेंज किया था ना, साइन ऑफ के एक्स माइनस वी टी में दो चीजें हैं, या तो मैं कर दूं साइन ऑफ के एक्स माइनस वी टी प्लस माइनस 2 पाई, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि रिपीट करेगी खुद को, या फिर मैं क्या करूं, मैं ये बोलूं साइन ऑफ के एक्स माइनस वी टी प्लस माइनस टाउ। तो मैं बोल रहा हूं एक निश्चित समय टाउ के बाद, एक निश्चित समय टाउ के बाद द वेव विल रिपीट इटसेल्फ। और वेव रिपीट इटसेल्फ का मतलब है कि उसके पूरे आर्ग्यूमेंट में प्लस माइनस 2 पाई कर दिया गया होगा। तो ये तो पुराने वाले लॉजिक से आ गया कि प्लस माइनस 2 पाई का मतलब है वेव विल रिपीट आफ्टर दिस इंटरवल। ये जो प्लस माइनस टाउ किया है, इट इज अ चेंज इन टाइम। तो इतने समय के बाद देखोगे तो भी वो वेव अपने आप को रिपीट करेगी। ये बात समझ आई? पहले हमने एक्स में लैम्डा चेंज किया, अब मैं टी में प्लस माइनस टी चेंज कर रहा हूं। Do you understand that what I have done? Sir, X is constant here. Tau is constant, just as plus minus 2 pi. The tau is constant. It's not a variable. For a given wave, tau is constant. T is not constant. V is constant. Velocity is constant. अच्छा, चलिए आप इसे ओपन करके देखिए what will happen then. So it would become, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स जो है वो मैं कह रहा हूँ इक्वल हो जाते हैं। आई एम सेइंग दैट k x minus v t plus minus tau is equals to k x minus v t और प्लस माइनस 2 पाई डायरेक्टली। अब इसे ओपन कीजिए, व्हाट विल हैपन देन, इट वुड बी के एक्स माइनस के वी टी और प्लस माइनस के वी टाउ, के एक्स माइनस के वी टी प्लस माइनस के वी टाउ इज इक्वल्स टू के एक्स माइनस के वी टी और प्लस माइनस 2 पाई। नाउ अगर आप दोनों साइड कंपेयर करें तो 2 पाई के बराबर कौन सी चीज आ रही है? The modulus of kv tau is becoming equals to 2 pi. Now I am considering, let's say कि kv tau is positive always, तो I can simply write कि kv tau जो होगा वो 2 pi के बराबर होगा, okay? kv tau will be equals to 2 pi and
k की वैल्यू अभी आपने लैम्डा के टर्म्स में निकाली थी, वो क्या थी? व्हाट वाज k इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? 2 pi by lambda. 2 pi by lambda into v into tau is equals to 2 pi. तो यहाँ से 2 pi से 2 pi कैंसिल और हमें मिला that v upon lambda is equals to 1 upon tau. अब इस 1 upon tau को मुझे कोई और नाम देने दीजिए f. I will call this as frequency या temporal frequency. टाइम के साथ कोई वेव अपने आप को रिपीट कर रही है, टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी. एंड टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी इज द रेशियो ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी अपॉन कांस्टेंट वेवलेंथ. तो यहां से हमें मिला, क्या मिला? दैट f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाउ. 1 अपॉन टाउ. और टाउ कैसे रिलेटेड है? टाउ रिलेटेड है लैम्डा अपॉन v करके. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि v is equals to f into lambda. तो v is equals to f lambda ये फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है ना? You have learned that. Yes, sir. और this is saying that something is repeating with time. समय के साथ कोई चीज खुद को रिपीट कर रही है. Now on x axis you have let's say kx plus minus vt. तो what you would see कि अगर मैं टाइम के साथ देखूं तो टाइम के साथ एक वेव अपने आप को रिपीट करेगी. तो let me just draw a few things. मान लो आपने देखा t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, तो आपको दिखी ऐसी वेव t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, यू सॉ समथिंग लाइक दिस. फिर आपने देखा लेट्स से t इक्वल्स टू सम अदर सेकेंड, तो आपको एक अलग तरीके की वेव दिखेगी. लेट्स से इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. और फिर ऐसे समय बीतता जाएगा, देन यू वुड सी अ वेव समथिंग लाइक दिस. ओके, तो ये समय के साथ में अपने आप को आगे बढ़ा रही है. और थोड़ा और समय देंगे तो यू वुड सी इट वुड बिकम देन समथिंग लाइक दिस. ओके, और फिर थोड़ा और समय देंगे तो इट वुड अगेन बिकम अ रेप्लिका ऑफ इटसेल्फ. ठीक, तो ऐसा कब होगा? जब आपका जो टाइम पीरियड है वो 0 के बराबर होगा, हो जाए. है ना? 0 के बराबर है. और ये कब होगा? ये हमने देखा कि जब समय बराबर टाउ के बराबर है. समय बराबर टाउ के बराबर है तो ये अपने आप को फिर से रिपीट कर गई. किसमें? अपनी शेप में. तो अगर मान लो मैं केवल इतने को देख रहा था, तो मान लीजिए मैं आई वाज एबल टू सी ओनली दिस पोर्शन. तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट इन अ नाइस एंड स्लीक वे. You have it like this. Let me just draw something like this over there, and another thing which is something like this. Let me just do it. So let me call that at t equals to 0. जब हमने देखा तो we got to see something like this. फिर at t is equals to एक छोटा सा पोर्शन और ले लें. जब हमने देखा तो हमें दिखा ये. ओके, समथिंग हैज शिफ्टेड और ये अलग से आ गई. तो अभी पता करते हैं व्हाट दिस इज गोइंग टू बी. फिर थोड़ी और देर बाद देखा तो हमें मिला वी गॉट समथिंग लाइक दिस. ओके, फिर थोड़ी और देर बाद देखा तो हमें मिला समथिंग लाइक दिस. और फिर और थोड़ी देर बाद देखा तो हमें मिली एक वेव यहाँ और दूसरी वेव यहाँ. ठीक, तो इट्स लाइक दिस. आप देखें ये जो है ऐसा तब होगा जब t इज इक्वल्स टू कैपिटल T बाय 2 टाइम्स आगे बढ़ जाएगी या टाउ बाय 2 टाइम्स आगे बढ़ जाएगी. और ये होगा जब t इज इक्वल्स टू कैपिटल टाउ टाइम्स आगे बढ़ेगी. यानी पूरा एक पीरियड समय में गुजर गया तो ये वेव ने अपने आप को यहाँ रिपीट कर दिया. फिर अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आधी आधी वैल्यूज डाल सकते हैं. जैसे ये कब होगा? ये होगा जब इसका भी आधा हो, यानी टाउ बाय 4 पे. और ये कब होगा? इट वुड हैपन व्हेन यू विल हैव 3 टाउ बाय 4. ओके, एंड दैट्स हाउ इट इज. तो समय के साथ में आप देख रहे हैं दैट समय के साथ में अपने आप को ये वेव जो है रिपीट कर रही है या प्रोग्रेस होती जा रही है. समय के साथ द वेव इज प्रोग्रेसिंग इटसेल्फ. ओके, तो ये दो चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. पहली चीज क्या है कि वेव अपने आप को पोजीशन में रिपीट कर सकती है. यस, वी प्रेमचंद पूछिए, व्हाट्स द क्वेश्चन?
पूछिए वी प्रेमचंद, व्हाट्स योर क्वेश्चन? You are not audible. You can probably type your question in the chat box and I would see it. Okay. So दो चीजों से रिपीटेशन हो सकता है, एक स्पेस में और एक टाइम में. जो टाइम में रिपीटेशन है दैट रिलेट्स विद वेवलेंथ, सॉरी जो स्पेस में रिपीटेशन है दैट रिलेट्स विद वेवलेंथ, जो टाइम में रिपीटेशन है दैट रिलेट्स विद टेम्पोरल या टाइम पीरियड. तो ये कहलाती है वेवलेंथ, ये कहलाता है टाइम पीरियड. फाइन. इसे कहते हैं हम स्पेशियल पीरियड, ये कहलाता है टेम्पोरल पीरियड. एक कहलाता है स्पेस में आगे बढ़ने वाला पीरियड और एक कहलाता है टेम्पोरल पीरियड. लेट मी जस्ट सी समवन हैज sent me a question. What is the difference between small t and tau? Okay, that's a nice question. जो आप small t ले रहे हैं, it is a variable. Okay. और जो आप tau ले रहे हैं, it is fixed value, especially given for a particular wave. किसी एक वेव का टाइम पीरियड 1 सेकंड हो सकता है कि वो 1 सेकंड में खुद को रिपीट करती है. किसी एक वेव का टाइम पीरियड 10 सेकंड हो सकता है कि वो 10 सेकंड में अपने आप को पूरा रिपीट कर पाती है. तो ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है. जैसे कि x was a variable and lambda was fixed. V prime, is the doubt clear? Is the doubt clear? Earlier we were having x as variable and lambda was fixed. Here tau is fixed and t is a variable. तो इसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं. ओके, आई गॉट इट. एंड यहाँ इसे हम वेवलेंथ या स्पेशल पीरियड बोलते हैं. सो अगर आप 1/tau लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. इसी तरीके से एक और टर्म भी होता है, लगे हाथ वो भी समझ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. We call that as angular frequency. Okay, we call that as angular frequency. And can anyone tell me what relation we derived between kV tau and 2 pi? ऐसे ही था, equal था. Now when I'm saying about angular frequency, I just want to say this, that k into v is equals to 2 pi by tau. Okay, k into v is equals to 2 pi by tau. 1/tau को क्या लिखना बताया था? There was a special symbol I reserved for 1/tau. What was that? Temporal frequency. F. Okay, F. So that is temporal frequency. But when I multiply it with 2 pi, that becomes my angular frequency. I'll denote it with omega. So omega is equals to, either you can say 2 pi by tau, temporal frequency, or 2 pi into F. F was the temporal frequency. Okay, and it is also equals to k into v. So अगर आपको velocity दी है और angular frequency दी है, तो you can also find the propagation number k. It is omega by v. Okay, that's it. So now you got to know about a few things. जैसे spatial period क्या होता है, wavelength क्या होती है, temporal और angular frequencies क्या होती हैं, और time period क्या होता है. ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई है. So I would like to know from you now. मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं. It is given as example number 2.3 in your textbook, or the soft copy of which I have already shared with you. They say that an ND-YAG laser, so yttrium aluminium garnet laser होती है, उसमें से जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ बता रहे हैं 1.06 माइक्रॉन्स है. दीदी, don't turn on the AC. Students are giving exam. Teacher, please don't do that. So this wavelength है 1.06 microns. Okay, this is ND-YAG laser की है. अब आपको और कुछ नहीं दिया है, आपसे पूछा गया है बताइए कि टाइम पीरियड क्या होगा. ओके, बताइए कि स्पेशल पीरियड क्या होगा, वो तो आप जानते ही हैं, और आप बताइए कि टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी f क्या होगी. और कुछ नहीं दिया है, बस ये दिया है कि एक वेवलेंथ है लेजर से निकलने वाली ND-YAG जो कि 1.06 माइक्रोन से निकलती है. फाइन. नाउ
लेजर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या कहलाती है? क्या निकलता है लेजर में से? व्हाट दैट कॉल्ड एज? बताएं। सर न्यूट्रॉन बीम। न्यूट्रॉन नहीं निकल सकते हैं, आर यू लाइक, न्यूट्रॉन सोर्स नहीं होती है लेजर, फोटोन सोर्स होती है, और फोटोन इज मेड अप ऑफ Electromagnetic लाइट। wave. लाइट, तो मयंक सागर इज करेक्ट, इट्स फोटोन वेव। फोटोन इज मेड अप ऑफ लाइट, और लाइट की स्पीड क्या होती है, यानी एक्चुअली आपको स्पीड भी दे रखी है, लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 into 10 to 3 into 10 to power 8 वॉट? meter per second. per second. हाँ, यूनिट जरूर बताया कीजिए। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ओके, आई अगेन रिक्वेस्ट, इफ यू आर नॉट एट अ क्वाइट प्लेस, प्लीज डोंट अनम्यूट योर माइक। जैसे नीतीश राजपूत, यू शुड प्लीज माइंड दैट थिंग। या तो शांत जगह बैठो, या फिर माइक अनम्यूट मत करो। ईयरफोन यूज नहीं कर रहे हो तो कर लो, अदरवाइज अगर शांत जगह नहीं बैठे हो, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। फाइन। सो नाउ वी हैव ऑल द थिंग्स। अब हमें क्या करना है, कई सारी चीजें निकालनी हो सकती हैं। आपको v दे दिया है, लैम्डा दे दिया है, और आपसे पूछा गया है सबसे पहले तो बताइए व्हाट इज द टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी, यानी f क्या होगा। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v, f एंड लैम्डा? यू नो दैट v इज इक्वल्स टू f लैम्डा बताया था, यानी f बराबर क्या होगा, व्हाट विल बी इक्वल्स टू f बराबर v बाय लैम्डा। ओके, v बाय लैम्डा हो जाएगा, तो f हमें पता है, इट इज v बाय लैम्डा। और v क्या है, बिकॉज लेजर इज मेड अप ऑफ लाइट, और लाइट की स्पीड क्या है, 3 into 10 to the power 8 meter per second अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज 1.06 माइक्रॉन्स। अब माइक्रॉन्स में अगर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 10 to the power minus 6 multiple 10 to minus 6. -6 का मल्टीप्लाई। यस प्रवीण, अगेन इफ यू आर नॉट एट अ क्वाइट प्लेस, प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, या तो ईयर कॉर्ड्स यूज करो। सो इट वुड बिकम नियरली 3 into 10 raised to the power minus plus 14 and divided by 1.06. Can you quickly tell me what it will be equals to nearly? So I would use the calculator. वैसे तो ये 3 के आसपास होना चाहिए, 2.9 something. So 3 upon 1.06, it would be 3 divided by 1.06 is 2.8. 2.8 3 into 10 raised to the power 14. अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? या तो Second inverse. सेकंड इनवर्स बोलो या फिर हर्ट्ज। ओके, या तो सेकंड इनवर्स बोलिए या फिर हर्ट्ज बोलिए। तो ये f पता चल गया, वी गॉट टू नो अबाउट f। नाउ टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन f एंड t। f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाउ या 1 अपॉन t, जिसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो बताइए, तो t क्या हो जाएगा? 1 अपॉन f के बराबर। अब 1 अपॉन f क्या हो जाएगा? टेल मी, दिस इज इक्वल्स टू योर टाइम पीरियड या टेम्पोरल पीरियड। आप वैल्यूज पता कीजिए, इट इज समथिंग लाइक 2.83 into 10 to the power 14, but 1 upon it. So it is equals to, time period is equals to 3.53 into 10 raised to the power minus 15. 3.53 into 10 raised to the power minus 15. टाइम पीरियड किस में होता है? सेकेंड्स में। ओके, 3.53 into 10 raised to the power minus 15 seconds। या फिर अगर ये -15 को क्या और लिख सकते हैं, अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में पढ़ा है तो वी कैन राइट इट एज फेम्टो। Pico. Pico is 10 to the power minus 12. Minus 15 is femto. We can write it as femtoseconds, which is 3.53 femtoseconds. इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में करीब करीब 10 to the power 15 टाइम्स वेव प्रोपेगेट कर जाती है। ठीक है, या वेव अपने आप को, वो जो 0 से प्लस माइनस पाई में आप देखते हैं, मैक्सिमा टू मिनिमा, एक सेकंड में 10 to the power 15 टाइम्स ऑफ फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं। इट्स बिग नंबर, क्योंकि एक फ्लक्चुएशन होने में 10 to the power minus 15 सेकंड लग रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा एक सेकंड दे दिया तो लगभग 3 into 10 to the power 15 वाइब्रेशंस हो जाएंगे। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द स्पेशियल वेवलेंथ? व्हाट अबाउट द स्पेशियल वेवलेंथ, या हम जिसे लैम्डा बोलते हैं, वो क्या होगा? व्हाट इज द लैम्डा? लैम्डा तो दिया हुआ था, व्हाट इट वाज इक्वल्स टू 1.,
1.06 micrometers. I can write as 1.06 into 10 to the power minus 6 meters. ओके अब आपसे पूछा है कि वेव नंबर बताइए, के बताइए, के किसके बराबर है? तो आप जानते हैं के किसके बराबर होता है? 2 pi by lambda. 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर। तो ये कहलाता है, आप जानते हैं, आई कॉल दैट एज प्रोपेगेशन नंबर, करेक्ट? रिमेंबर लास्ट टाइम के वीडियो से या आज के वीडियो से, ये कहलाता है प्रोपेगेशन नंबर। अब आपकी किताब का ही नोटेशन अगर यूज करें तो अगर आप इस 2 पाई को यहाँ से रिमूव कर दें, अगर आप इस 2 पाई को यहाँ से हटा दें, या फिर मैं ये कहूँ आप एक नया नंबर लाएं विच इज इक्वल्स टू k अपॉन 2 पाई, k अपॉन 2 पाई, इस ये कहलाता है कोई कप्पा, कोई स्पेशल नंबर दे दिया, इसको नाम दे दिया कप्पा, और यही कापा कहलाता है वेव नंबर। तो प्रोपेगेशन नंबर और वेव नंबर में इतना सा डिफरेंस है दैट वेव नंबर इज इक्वल्स टू k अपॉन 2 पाई, और यही वेव नंबर को आप आपसे जानेंगे स्पेशियल फ्रीक्वेंसी के नाम से। तो जो लैम्डा था वो क्या था फिर? स्पेशियल पीरियड। तो जैसे टाउ टेम्पोरल पीरियड था, लैम्डा स्पेशियल पीरियड हो गया, और 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा ये बात, इट इज इक्वल्स टू k अपॉन लैम्डा, तो अपॉन 2 पाई, तो ये 1 अपॉन लैम्डा हो गया। तो स्पेशियल वेवलेंथ पूछी जाए या पीरियड पूछा जाए तो लैम्डा, और स्पेशल फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो यू वुड से 1 अपॉन लैम्डा व्हिच इज इक्वल्स टू कापा। और ये 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होगी? अब बताएं व्हाट दिस विल बी इक्वल्स टू। सो 1.06 1 डिवाइड बाय आंसर, इट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 0.943 into 10 raised to the power 6, which can be written as nearly 943 into 10 raised to the power 3। अब बताइए जो कापा है उसकी यूनिट्स क्या होंगी? अगर लैम्डा की यूनिट्स मीटर में थी तो कापा की यूनिट्स किस में होंगी? मीटर इनवर्स. मीटर इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने लिखा स्पेशल फ्रीक्वेंसी कापा, कापा इज 1 अपॉन लैम्डा, इसका मतलब है कि अगर आप 1 मीटर लेंथ ले लें, मान लो ये 1 मीटर लेंथ है, तो करीब 943,000 वेव्स दिख जाएंगी आपको, केवल 1 मीटर में इतनी सारी वेव्स, 943,000 यानी 9,43,000 वेव्स 1 मीटर में दिख जाएंगी। और सेकंड से देखें, 1 सेकंड में कितनी दिखेंगी? हाउ मच? 1 सेकंड में कितनी बताए? तो एफ से भी पता चल जाएगा। 2.83 10 to the power 14 है, या यहाँ से देखें 3.53 फेम्टो सेकंड्स है, तो 3.53 10 to the power 15 दिख जाएंगी आपको वेव्स। इट्स लाइक दिस। ओके, तो आज का जो लेक्चर था 3.53 में 10 पर -15 दिखेंगे. -15, तो बेटा ये पर सेकंड में नहीं है, ये गौर से देखो, ये तो टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड है 10 to the power -15 सेकेंड्स। तो 1 सेकंड में कितनी दिखेंगी? अगर 1 का है 10 to the power -15 सेकेंड्स, तो पूरे 1 सेकंड में इसी का मल्टीपल दिखेगा। बात समझ आ रही है? जैसे मैं बोलता हूँ 1 मिनट में कोई चीज, या मैं बोलता हूँ कि एक बार होने में किसी चीज को 2 मिनट लगते हैं, एक बार होने में किसी चीज को 2 मिनट लगते हैं, तो बताइए 1 घंटे में वो कितनी बार हो जाएगी? बताएं। 30 बार. 30 बार हो जाएगी, ऐसे करके, है ना? इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे कि ये कितनी बार हो जाएगी, तो व्हाट यू विल डू, टाइम को इससे डिवाइड दे देंगे। तो अगर आप 1 सेकंड से डिवाइड देते हैं इसको, यू विल गेट योर आंसर। और 1 सेकंड से डिवाइड देने का मतलब है ये कि 1 सेकंड में कोई चीज 2.83 into 10 to the power 14 टाइम्स खुद को रिपीट कर जाएगी। 2.83 into 10 to the power 14 टाइम्स खुद को रिपीट कर जाएगी। ठीक है, या आप कहें 1 अपॉन इतना टाइम्स रिपीट कर जाए, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। तो आज का जो लेक्चर है उसमें आपको टेक अवे, यानी जो चीजें घर ले जानी है या याद रखनी है, वो है ये कि you can have spatial repetitions, you can have temporal repetitions. Okay, spatial
पीरियड कहलाता है लैम्डा और टेम्पोरल पीरियड कहलाता है टाइम पीरियड टी, कैपिटल टी, या इसे टाउ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम वेवलेंथ भी होता है और इसका दूसरा नाम टाइम पीरियड होता है। ओके, अनदर थिंग इज यू कैन हैव फ्रीक्वेंसी। तो स्पेशल फ्रीक्वेंसी जो कि 1/λ के बराबर होती है, कापा से डिनोट होती है, या इसको आप k/2π भी लिख सकते हो। ठीक है, कापा लिख सकते हो या k/2π भी लिख सकते हो। एंड व्हाट डिड आई जस्ट टोल्ड यू, अगर आप k/2π लिख सकते हो, व्हाट डिड आई जस्ट टोल्ड यू, तो k होता है 2π/λ, इट इज 2π से डिवाइड कर दिया, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये पूरा देखें तो किसके बराबर है, ये प्रोपेगेशन नंबर है या वेव नंबर है, Wave. this is equals to Wave wave number. number. Okay, similarly we can have frequency for temporal repetitions, या टाइम के साथ अगर कोई चीज रिपीट करे तो it is 1/tau is equals to f. okay, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ω/2π, and this whole thing is called as simple frequency, या temporal frequency. okay, time dependent या temporal frequency. और इन सबके बीच में रिलेशनशिप भी पता है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब यहाँ से जो चाहे आप कर सकते हैं, टाइम पीरियड में चाहे टाइम पीरियड में, लैम्डा में चाहे लैम्डा में, वेलोसिटी में चाहे वेलोसिटी में, ओमेगा के टाइम में भी, टर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज f is equals to ω/2π, so I can also write v is equals to ω/2π. okay, ω/2π into लैम्डा, तो λ/2π, 2π/λ, तो यहाँ से लिख सकते हो ω/k के बराबर, क्योंकि 2π/λ इस k के इक्वल होती है। तो यहाँ से बहुत सारी रिलेशनशिप्स आ सकते हैं, एंड यू कैन मेक अ चार्ट ऑफ ऑल दोस रिलेशनशिप्स। फाइन, तो ये रही जो चीज़ आज हमने पढ़ी, और जाने से पहले एक छोटा सा रिवीजन चार्ट और बना लेते हैं, जो कि हमें आगे चल के इस्तेमाल करना पड़ सकता है, वी माइट यूज इट इन फ्यूचर। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू आस्क एनी डाउट, क्वेरी, कोई क्वेश्चन अभी तक जो पढ़ा है उसमें से तो नहीं? यस और नो? सर आप डेरिवेशन करा रहे, इसकी थ्योरी भी कराओगे आप? नो नो नो, सी व्हाट एवर आई एम गिविंग इट इज फुल एंड फाइनल, इससे आगे कुछ नहीं, इसके आगे जो आता जाएगा सिलेबस में अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, बट प्लीज कीप योर माइक म्यूटेड। माइक म्यूट करो। डेरिवेशन थ्योरी मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं डिक्टेशन करके कुछ लैंग्वेज भी बताऊंगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई भी नहीं कराएगा, मतलब इस कोर्स में तो नहीं। So there is nothing like I am dictating, you are making your notes, you have to make your own notes. Okay, so somebody was asking me that if you can go on the last page, you were making notes of it. Let me just check. Yeah, is this what you need? I hope this is what you need. You can take screenshot, or you can please upload the lecture. Yeah, I would definitely upload it, don't worry about it. Okay, now what I want you to also understand, another thing is this. So we started with psi is equals to a sine kx minus vt, या x minus plus vt, आप जो चाहे वो ले लें। ठीक है, the only relationship will be ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है? that the wave is progressing towards which axis? Positive x-axis. Yeah, don't say forward direction. Forward direction towards negative x-axis भी हो सकता है, you say forward towards positive x-axis या positive x-axis. Okay, now we will use our formulas, and मान लीजिए k की जगह मैं 2π/λ रख देता हूँ, sin 2π/λ, तो ये x minus plus vt. Now you will tell me, इसको थोड़ा सा अगर और रिप्लेस करें, ये 2π/λ में से लैम्डा को if I am taking inside, then what will happen? a sin 2π बाहर रखा है मैंने, ये हो गया x upon लैम्डा, okay, this is x upon लैम्डा minus plus vt upon लैम्डा. okay, अब yeah, this seems fine to me. एक इक्वेशन ये हो गई, अब इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, a sin 2π कॉमन, 1/λ किसके बराबर होता है? 1/λ,
तो आप इसे लिख सकते हैं कपा इंटू एक्स, ओके, कपा इंटू एक्स माइनस प्लस वी बाय लैम्डा किसके इक्वल लिखाया था? v बाय लैम्डा इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, या मैं लिख सकता हूँ इसे t बाय टाउ. Definitely you are right. I can also write it simply as a sin 2 pi kappa x minus plus ft. ये भी लिख सकते हैं. You are right in that. अब अगर 2 pi को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं then what will happen? So it would be a sin. अब 2 pi into kappa किसके बराबर है? 2 pi into kappa किसके बराबर है? सोचो. k के बराबर. पीछे के पेजेस पलट के दिख जाएगा आपको. k के बराबर. और यहां से मैं लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू एफ किसके बराबर होता है? 2 पाई इंटू एफ. तो अब देखिए ये वाली फॉर्म जो आपने पहले देखी होगी कभी, साइन के एक्स माइनस प्लस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी आ गई अपने पास. केवल कहां से शुरू किया था? के एक्स से. और वेव बनाने के लिए, उसे प्रोग्रेसिव वेव बनाने के लिए भी subtracted a term minus vt and that's how it is proceeding further, that's how it is happening. ओके. और एक लास्ट में आप ये चीज और लिख सकते हैं. नाउ इफ आई वांट टू टेक द फ्रीक्वेंसी कॉमन, मान लो मैं एफ कॉमन लेना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? या मान लो मैं 2 पाई एफ कॉमन लेना चाहता हूं तो साइन हो गया ये 2 पाई के साथ आई वांट टू टेक एफ कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई ले लिया है तो इसलिए यहाँ पे आई विल बी लेफ्ट विथ सम कापा इनटू एक्स अपॉन वी और माइनस प्लस, क्योंकि f कॉमन ले लिया है तो ये केवल t बचेगा. ओके, सो इट्स लाइक दिस. अब कापा अपॉन f की वैल्यू, निरख विल यू प्लीज कीप योर कैमरा ऑफ, थैंक्स. ये कापा अपॉन f की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो ये हो जाएगा a sin 2 पाई f. अब बताएं कापा अपॉन f किसके इक्वल है? बताओ. k अपॉन f किसके इक्वल है, या कुछ ऐसे सोच के बताओ. टेल मी what is equals to kappa upon f. देखिए kappa upon f करने का बोल रहा हूँ. ओके, सो आप जानते हैं किसके इक्वल है? Wave number. No, it's not equal to wave number. So kappa is equals to k upon 2 pi. ओके, और f को f की तरह लिखा. अब 2 pi f किसके इक्वल है बताओ? ओमेगा. और k अपॉन ओमेगा किसके इक्वल है? Praveen, will you please keep your mic muted? Praveen, next time if you are opening your mic now, please remember I am going to remove you out. Otherwise, use microphones. Use your earphones. Use ear cords. It becomes very unprofessional. आप कितनी अनसाउंड जगह बैठे हो जहाँ से सारे बैकग्राउंड नॉइसेस आ रहे हैं, सारे तरीके के आ रहे हैं. And that's bad. Please be assured I am not going to provide today's recording to anyone. Those who attended the live class, they have attended it. And that's it. I just want sheer responsibility from your side that if you are not at a quiet place, just keep your microphones muted. And that's it. Maybe you guys don't understand English. अरे हिंदी में समझ लो. अगर शांत जगह नहीं बैठे हो तो माइक मत ऑन किया करो, अनम्यूट ही रखा करो खुद को, म्यूटेड रखा करो खुद को. खैर, अब ये k अपॉन ओमेगा किसके इक्वल है? What is k upon omega equals to? It is equals to 1 upon v. Okay. So if it is equals to 1 upon v, then I can simply write that f ये हो गया x upon v minus plus t. ये भी एक वेव हो सकती है. तो एक ही वेव को रिप्रेजेंट करने के तरीके देखिए कितने सारे हैं. एक ही वेव को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं अनेक. Now Praveen Pal is asking how. Praveen, this is the only issue. You are busy turning on and off the mic and now you are asking me to explain it again. Remember that it was equals to kappa by f. Kappa is equals to k upon 2 pi. So I can write this as k upon 2 pi f. K upon 2 pi is equals to omega. K upon omega is equals to 1 upon v. ठीक है? Is it clear? Chat box में ही बताना yes या no करके. Don't turn on your mic.
and that's it. So we have got these many representations for our wave. Now before leaving, जाने से पहले बस एक चीज याद रखिएगा, because such a wave is having only one frequency which is f, या आप ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं. ऐसी वेव का एक और नाम होता है जिसे कहते हैं मोनोक्रोमैटिक वेव. A wave having only one frequency is called a monochromatic wave. Monochromatic wave. ठीक. आइडियली कोई भी रियल लाइफ में मोनोक्रोमैटिक वेव नहीं होती है, लेकिन आप मान सकते हो क्योंकि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पर, जैसा कि एक स्टूडेंट ने कहा था कि चेक कैसे करेंगे कि रिपीटेशन हो रहा है. अगर रिपीटेशन नहीं होगा, वेव ट्रंकेट हो जाएगी तो हार्मोनिक्स आने लगेंगे, यानी अदर फ्रीक्वेंसीज भी आने लगेंगी. अब ये हो सकता है कि जो अदर फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत दूर ना हो ओमेगा से, ओमेगा प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा ही हो, लेकिन आइडियली अगर आपकी वेव में केवल एक ओमेगा प्रेजेंट है, एक ही लैम्डा प्रेजेंट है, ऐसी वेव को आप मोनोक्रोमैटिक वेव बोलते हैं. ठीक. सो व्हाट डू यू मीन बाय मोनोक्रोमैटिक वेव? अ वेव व्हिच इज हैविंग ओनली वन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ओनली वन वेवलेंथ व्हिच इज कांस्टेंट, एंड दैट्स इट. तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक मोनोक्रोमैटिक वेव के लिए रिलेशनशिप्स डिराइव कीजिए व्हिच इज साइनसॉइडल इन नेचर, तो आप यही सारी चीजें जो आपको बताएंगे वो आपको करनी होगी. जैसे किसी ने कहा कि टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी की रिलेशनशिप निकालिए, तो यू हैव टू यूज द आर्गुमेंट कि टी में प्लस माइनस टाउ करना है और पूरे के एक्स में प्लस माइनस 2 पाई करना है. और अगर आपसे किसी ने कहा कि वेवलेंथ निकालिए, तो x प्लस लैम्डा करना है और के एक्स में पूरे में प्लस माइनस 2 पाई करना है. दैट्स हाउ यू विल प्रोसीड फर्दर. गॉट इट? अब ये जरूरी नहीं है कि वेव का साइन होना या कोसाइन होना ही जरूरी है, ऐसी कोई बंदिश नहीं है. ये वाली इक्वेशंस जो है या इस तरीके की इक्वेशंस किसी भी प्रोफाइल पे लग सकती है. जैसे एक तो पूरी वेव थी हमारी साइन वाली, अब ये वाली वेव देखिए. Will you consider this as a wave? Tell me, will you consider this as a wave? Answer yes or no? Yes, sir. Okay. Why? Yes, sir. So yes, you will consider this as a wave. Piyush, sing yes. So your answer is wrong. You will have to consider this as a wave. Why? वेव का मतलब तो केवल डिस्टर्बेंस जो कि अपने आप को सेल्फ सस्टेन्ड वे में समय के साथ किसी पोजीशन पे अपने आप को प्रोपेगेट करा ले. तो यहाँ पे भले ही ये ऐसे साइन पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसको भी आप पीरियोडिक डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं. यहाँ पे वेवलेंथ केवल यहाँ से यहाँ तक की ही है, तो वेवलेंथ बदल गई. ओके, मयंक इज राइट बिकॉज इट इज रिपीटिंग ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ओवर पर्टिकुलर वेवलेंथ. वो बात अलग है कि अब ये प्योर साइनसॉइडल वेव नहीं है, ये एक अलग तरीके की वेव है जिसमें हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल कट चुकी है, वो है ही नहीं. ओके, सो इट्स अ वेव लाइक दैट. फ्रीक्वेंसी एक ही है. दिस इज आल्सो अ मोनोक्रोमैटिक वेव. ओके, दिस इज आल्सो अ हार्मोनिक वेव, but not of ax sin omega t type. It is something else, something different. अब ये ऐसी वेव्स आ जाएंगी तो काम कैसे करेंगे इज अ मैटर टू बी डिस्कस्ड इन द लेक्चर्स अहेड. आज की क्लास में केवल हार्मोनिक वेव से हमें डील करना था. तो जरूरी नहीं है कि साइन ओमेगा टी के एक्स होना जरूरी हो या कॉस ओमेगा टी के एक्स होना जरूरी हो. ऐसी वेव भी हो सकती है. somebody is suggesting me, sir, ऐसा नहीं हो सकता है कि this is some fx is equals to modulus of sin x हो गया हो. Right, this can be the case, but to think about this as a wave, you remember that हमारे पास क्या आ गया है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अच्छा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो इसकी वेवलेंथ इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी कि मान लो लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2? व्हाट इज द रिलेशनशिप? 2 equals lambda 1. 2 लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा. एग्जैक्टली. तो हाफ वेवलेंथ यहाँ रह गई है. और अगर टाइम पीरियड में देखें तो ये जितनी देर में खुद को रिपीट करेगी उतनी देर में वो ट्वाइस बार रिपीट कर जाएगी.
Sanchit, will you please keep your mic muted again? I hope you will, otherwise you will be removed. Thank you so much. Yash, your question? सर आपने बोला था मोनोक्रोमेटिक वेव डज नॉट रियली एग्जिस्ट, तो सर उससे मुझे समझ में नहीं आया था वो Okay, क्यों नहीं करती एग्जिस्ट. मैं आपको बताता हूँ. मोनोक्रोमैटिक वेव का मतलब होता है अनंत से अनंत तक जाएगी, यानी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में वो होगी, तब उसे मोनोक्रोमैटिक बोलते हैं. आगे चल के इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे आप, लेकिन फूरियर सीरीज जब जानेंगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फूरियर सीरीज, उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपकी वेव आप ट्रंकेट कर देते हैं, ट्रंकेट का मतलब खत्म कर देते हैं. आपने कहा कि मेरी वेव शुरू ही 0 से होगी साहब, और ये जो है 0 से पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई पे खत्म हो जाएगी. यू आर सेइंग 6 पाई तक ही रहेगी, ट्रंकेट हो जाएगी. तो आप देखेंगे कि इस वेव में देखने में तो कितनी फ्रीक्वेंसी दिख रही है वैसे, हाउ मेनी फ्रीक्वेंसीज डू यू सी? 1. लेकिन जब इसको सिंथेसाइज करेंगे तब पता चलेगा कि हमने जो ऊपर से बंदिश लगाई ना कि 0 से शुरू होनी चाहिए और 6 पाई पे खत्म हो जानी चाहिए, उसकी वजह से कुछ और एक्स्ट्रा हार्मोनिक्स और आएंगे, एंड उनकी फ्रीक्वेंसीज बराबर नहीं होगी इसकी फ्रीक्वेंसी की. ये इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है टू सिंथेसाइज वेव्स. आगे डिस्क्रीट सिग्नल प्रोसेसिंग या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ोगे, उसमें सब बताया जाएगा. तो अभी के लिए यू कैन टेक इट एज अ स्टेटमेंट कि आइडियली कोई भी वेव मोनोक्रोमैटिक नहीं होती. हाँ, ये होती है झूठ मूठ की मोनोक्रोमैटिक, क्वासी मोनोक्रोमैटिक, क्वासी मोनोक्रोमैटिक. ओके, ये होती है. आइडियली कोई भी वेव मोनोक्रोमैटिक नहीं होती. सर हाँ यश, पूछिए. सर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है हायर स्टेट से लोअर ऑर्बिट में, तो फिर सर उसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी निकलती है, तो Definitely. उसमें वो मोनोक्रोमैटिक नहीं हो सकती. आपसे वो कहा, कुछ कभी चेंज हो I सकता will है. tell you, we say that it's a fixed frequency, but collisions या किसी और चीज की वजह से होता क्या है, मान लो मैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट कर रहा हूँ. फाइन, फ्रीक्वेंसी वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो आइडियली ये होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एच न्यू टाइप के इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए. ये एक स्ट्रेट लाइन बस यहाँ पे ऐसी होगी. वी कॉल दिस एज डिराक डेल्टा फंक्शन. डिराक डेल्टा एक तरीके से एक ऐसी स्लिट है, यहाँ पे सब कुछ फंक्शन 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है कि इतने इलेक्ट्रॉन इस फ्रीक्वेंसी पे, बाकी कहीं नहीं. यश, ये सही है? ये नोटेशन समझ आया व्हाट आई एम गोइंग Yes, टू sir. सजेस्ट? यस सर. अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा नहीं होता है एक्चुअली. आइडियली ऐसा होना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है. इनफैक्ट आप जो बोल रहे हैं ना लेजर्स मोनोक्रोमैटिक सोर्स होती है, उसमें भी छोटी मोटी क्वाजी मोनोक्रोमैटिसिटी आ जाती है. इसका मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग अ शार्प लाइन लाइक दिस, आई विल हैव अ बीम लाइक दिस, और इस बीम की अपने आप में एक विड्थ होगी जिसे आप बोलते हैं बैंडविड्थ. और किसी भी सिस्टम की बैंडविड्थ होती ही होती है, मिलता ही मिलता है डेल्टा ओमेगा. तो इसमें परफेक्ट ओमेगा है, इसमें ओमेगा प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा है. ओमेगा इज देयर, बट कुछ प्लस माइनस डेल्टा का टर्म आ जाता है, और ये ट्रांजिशंस के समय भी आता है. ठीक है, कुछ भी प्योर मोनोक्रोमैटिक नहीं होता, रिमेंबर दैट. इनफैक्ट हम जो सबसे ज्यादा मोनोक्रोमैटिक सोर्स बोलते हैं, जो कि लेजर कहलाती है, लेजर में भी परफेक्ट वन फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है. फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस सम अदर फ्रीक्वेंसीज मिल जाती है. बात समझ आई यश? यस सर. सर मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में बोलते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, उसमें पॉसिबिलिटी वो है, है. प्रोबेबिलिटी है. यस सर, वो हाँ. ओके, तो जो आपसे कहा गया कि फिक्स इतनी एनर्जी निकलेगी, इतनी एनर्जी के इतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उसमें प्लस माइनस डेल्टा ही रहता ही है. एनर्जी अनसर्टेनिटी तो पढ़ी ही होगी आपने, या वो क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी. हाइजेनबर्ग पढ़ी है सर. वो होती ही होती है, इट इज देयर, इम्बाइब्ड है, नेचुरल नेचर है चीजों का कि वो फिक्स्ड मोनोक्रोमैटिक नहीं हो सकते. कुछ ना कुछ प्लस माइनस डेल्टा होता है. अभी तक आप लोग फिक्स साइन ओमेगा टी पढ़ा है, तो आप कहेंगे कि एक ही तो फिक्स वेव है, मोनोक्रोमैटिक है. हालांकि उससे हमें ज्यादा डील नहीं करना है इस कोर्स में, लेकिन सच्चाई जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि
there will be something which would be new to you, और वो accept नहीं कर पाओगे क्योंकि 12th क्लास में उस तरीके से पढ़ाया जाता है. But this is the सच्चाई. अगर आप ये भी प्लॉट करें ना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किस वेवलेंथ के या किस फ्रीक्वेंसी के आ रहे हैं, उसमें भी फिक्स्ड नहीं होता है. प्लस माइनस डेल्टा बैंडविड्थ आ ही जाती है, आ ही जाती है. And that's it. That's how we say. तो better say instead of saying monochromatic, use the word quasi monochromatic. ठीक. But this wave, जैसे कि नोटेशन आपको पढ़ाया है, sin x, t is equals to a sin kx minus omega t. ये वेव अपने आप में मोनोक्रोमेटिक ही है क्योंकि इसमें ओमेगा ही दिख रहा है, डेल्टा ओमेगा तो दिख ही नहीं रहा है. यू सी ओनली वन ओमेगा हियर. दैट्स व्हाई वी कॉल सच अ वेव व्हिच इज द आइडियल कैंडिडेट ऑफ बीइंग कॉल्ड एज अ हार्मोनिक वेव. यही तो है हार्मोनिक वेव, यही तो है, और क्या है. दीज आर मोनोक्रोमेटिक. ठीक. आगे चल के पढ़ेंगे, ऐसी कोई मोनोक्रोमेटिक वेव होती ही नहीं है. दरअसल कोई ना कोई सुपरपोजिशन या कुछ ना कुछ परेशानी तो आ ही जाती है. वी विल अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फेज एडिशन, फेज वेलोसिटी इन आवर फ्यूचर क्लासेस. प्रतीक, यस, योर क्वेश्चन प्लीज. Sir, if we increase the frequency, sir, then the bandwidth will decrease. ये कहाँ से पढ़ा है? Sir, radio tune में. That happens. You are right. Will you please keep the microphones muted? Yes. So now अभी तक मैंने आपको कोई बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी पे रिलेशनशिप नहीं बताई है. ओके. फिर तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे क्वालिटी फैक्टर है, एनर्जी ट्रांसमिशन है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. बट आई हैव नॉट गॉन इनटू इट. तो आप जो मुझे फैक्ट बता रहे हैं, दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम्स. हालांकि बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी भी पड़ती है. ओके. तो आप जानते हैं ये अच्छी चीज है, आपने मुझे बताया ये अच्छी चीज है, बट इट इज not towards our syllabus, so it's fine. The Sachin, again your question, what that is? Sir, all harmonic waves are quasi monochromatic. Okay, so there are monochromatic waves also, but in real life you won't see any monochromatic wave. It's like this. तो रियल लाइफ में मतलब आप रियल लाइफ में एग्जांपल्स दीजिए कुछ मोनोक्रोमेटिक वेव्स के, कहाँ देखने को मिल सकती है. टेल मी. तनिष्क, यस, टेल मी. रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलती है मोनोक्रोमेटिक वेव्स? सोडियम लैंप में भी एक मोनोक्रोमेटिक वेव होती ही नहीं है, 2 लाइंस आती हैं, आप चेक कर लेना इंटरनेट पे. सोडियम लैंप हैज 2 वेवलेंथ्स, एक नहीं होती. चेक करो, मिल जाएगा आपको. आप एक मानते हैं लेकिन उसमें प्लस माइनस होता है, यू चेक इट. अब आप कहोगे सर सिंपल पेंडुलम वो भी साइन ओमेगा टी जैसा होता है. नहीं होता है. कंटिन्यूअसली इन्फिनिट समय तक तो चलता ही नहीं है, वो तो डिके होने लगता है. तो मोनोक्रोमेटिक हुआ ही नहीं. आइडियल पेंडुलम मोनोक्रोमेटिक हो सकता है, बट वो होता ही नहीं है. ओके. या फिर आप तो पीयूष बोल रहे हैं सर मोनोक्रोमेटिक रेज आर आइडियल. यस, नो, वी से दैट in case you have an ideal harmonic wave that can be monochromatic, but if you are saying कि आपने रियल लाइफ से कोई एग्जांपल लेके दिया है और वो कह रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक है, इट वोंट बी पॉसिबल. ऐसा नहीं होता. वो क्वाजी मोनोक्रोमेटिक हो सकती है, मोनोक्रोमेटिक नहीं. अंडरस्टूड? यस. सर अगर मुगई लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कैसे हुआ? बताइए बताइए. इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. यू आर सेइंग दैट अगर सोडियम लैंप, व्हाट यू आर सेइंग? सर अगर कोई भी लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है तो फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कैसे हुआ? उसमें हमें वे पैटर्न्स कैसे मिले, क्योंकि बहुत बढ़िया, उस डिस्टेंस में मिले ही नहीं चाहिए. बहुत बढ़िया चीज बताई आपने. आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट. वो एक्सपेरिमेंट सफल हुआ क्योंकि उसकी जो ये जो स्पैन था ना, यानी उसकी जो डेविएशन था फ्रॉम द सेंट्रल फ्रीक्वेंसी वाज वेरी लेस, बट डेविएशन वर देयर. गॉट इट? और ये डेविएशंस बहुत देखने को मिलते हैं व्हेन यू विल प्रोसीड फर्दर विद द बायर फ्रिंजेंस. जब डबल रिफ्रैक्शंस पढ़ोगे, इसी कोर्स में है, या न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट करोगे. अभी तो न्यूटन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पढ़ी होंगी आपने, उसमें न्यूटन रिंग पढ़ोगे तो हमें ये चीजें देखने को मिलती है. हम कंसीडर करते हैं कि मान लो भाई मोनोक्रोमेटिक है, बट आइडियली इट वाज नॉट मोनोक्रोमेटिक. ट्रस्ट मी. फाइन. यस सर. मोनोक्रोमेटिक का मतलब तो ये हुआ कि
अगर आप उसका स्पेक्ट्रम देखें तो वो दिखेगा ही नहीं। जब तक स्पेक्ट्रम की विड्थ नहीं होगी, लाइन नहीं होगी, तो मेरी आंखों को दिखेगा ही नहीं। और मैं कह रहा हूं कि एक फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी आप सोचिए वो कितने हर्ट्ज की होती है, करीब करीब। अच्छा वेवलेंथ बता दो, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ कितनी रहती है नियरली, बताओ। सर मुझे याद नहीं है। अरे 600 वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास एंगस्ट्रॉम्स, होती थी। एंगस्ट्रॉम्स के यस आसपास सर। होती है। तो एक एंगस्ट्रॉम आंखों से देख लोगे? नो सर। देख ही नहीं पाओगे। जब मैं बोल रहा हूँ 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 एंगस्ट्रॉम भी दिख नहीं पाएगा। वो जब तक लाइन थोड़ी सी मोटी नहीं होगी दिखेगी ही नहीं। और मोटी होने के लिए उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ेगी। तो वो हो ही नहीं सकता क्वासी हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो विड्थ है वो डेफिनेटली कम है सोडियम लैंप में। ये जो डेल्टा डिफरेंस है वो कुछ प्लस माइनस कुछ एंगस्ट्रॉम्स का है, बट इट इज देयर इन एनी सोर्स, इट विल बी देयर। बिकॉज़ ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। yes it has to be okay, but that ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह में हम जा रहे हैं वो हमने सेमेस्टर 2 की अप्लाइड फिजिक्स 2 PHM 281 के लिए बचा के रखा हुआ है। अब आप लोगों ने ये टॉपिक मुद्दा छेड़ा ही था तो मैं चला गया उसमें। बट रिमेंबर दैट आइडियल वेव्स कैन हैव वन फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमैटिक कहला सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जो भी होगा वो क्वासी मोनोक्रोमैटिक हो सकता है। ठीक, और ऐसा भी हो सकता है कि यू कैन हैव वेव्स और मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। जो कॉन्सेप्ट आपने बीटिंग फिनोमेना का पढ़ा होगा, कभी पढ़ा है बीटिंग? बीटिंग क्या होती है? यस सर। बीट्स। यस सर। Beats, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती हैं तो फिर yes, लोअर superposition. फ्रीक्वेंसी। यस सर। That will come, that we will see in our future classes. That's it for today's class. Thank you so much for joining. I'm not very sure for class tomorrow, but I will definitely take it if I have got a free chance from my duties. So yeah, CTs चल रहे हैं and we are not all free. Thank you so much all of you for connecting. I will provide you the recordings, but now these recordings will not be provided on YouTube, or it will be provided as a private video. Thank you so much.